Hello students, in today's lecture number 7 on wave optics for class 12, we shall discuss fringe width and relation for it. Also we shall discuss the dependence of fringe width on various parameters. Dear students, in lecture number 6 we already had a discussion on Young's double slit experiment. Young's double slit experiment जिसमें हमने बात की कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसके आगे रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड में दो हमने स्लिट्स फॉर्म की, दो होल किए जिनको हमने स्लिट बोला, और स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा और इस स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का हमें फ्रिंज पैटर्न मिला। ये फ्रिंज पैटर्न हमें स्क्रीन के ऊपर मिलता है और ये फ्रिंज पैटर्न हमें ये कहता है कि जितने भी मैक्सिमाज मिल रहे हैं, वेदर द मैक्सिमा इज एट सेंटर ऑफ द स्क्रीन और any number of maxima, whether it is first maxima or last maxima or middle maxima, whatever is the number of maxima, always the maximum value of intensity for each and every maxima will remain same, and which is 4I0, and minimum value of intensity will be 0, approximately 0, right? So for two coherent sources we discussed this fringe pattern in Young's double slit experiment. This was the setup which we discussed. At center point of the screen we get maxima, means this type of pattern, and again we get this type of pattern below the center point, and same pattern above the center point, same pattern above the center point. Like this we get this type. All maximas will be of same intensity, all maximas will be of same intensity. This type of fringe pattern we get on this screen. It can be represented like this also. So this was the fringe pattern. We also discussed that this interference pattern or fringe pattern will be sustained or proper only when this condition is satisfied. What is this condition? This lambda is the wavelength of light which is emerging from monochromatic source S, and small a is the width of the source of the slit of the source, right? And small d is the distance between S1 and S2, and also consider that small y is the distance between source and slits. Small you see, small y is the distance of slits S1 and S2 from source S, and small d is the distance between slits S1 and S2. Then lambda upon a will always be, if it is always greater than or equal the ratio d upon y, then only these two sources S1 and S2 will remain coherent. The light emerging from these two sources will be in phase, and finally we get proper or sustained interference pattern on screen. Otherwise we will not have proper or sustained interference pattern if this condition is not satisfied. We also discussed some other points. Capital D should be large but not very large, because you see the capital D, which is the distance between slit and screen, it is directly proportional to the fringe width, and if you increase capital D then the fringe width will increase. So what will happen? The width of the fringes will be greater, and because of large value of fringe width, various fringes may overlap. So it is very much obvious that if the fringe width of the fringes will increase, then there are more chances of overlapping, and finally we will not have proper or sustained interference pattern. So capital D should be large but not very large. Small d, which is the distance between S1 and S2, should be small but not very small, because you see small d is inversely proportional to fringe width. If this small d is very small, very small, then beta will increase very high. It will be very high, you can say. If d is very small, beta will be very high, and again if beta is high, it means the width of the fringes will increase and various fringes will overlap each other, and finally we will not have any proper or sustained interference pattern. Third, if you increase the wavelength of the light emerging from source, then also we will not have proper or sustained interference pattern,
because the wavelength is also directly proportional to the fringe width. Then we discussed if we immerse this whole arrangement of Young's double slit experiment into another medium in place of air like water, then the fringe width of this interference pattern will change by 1 upon mu, where mu is the refractive index of the medium in which this whole arrangement is immersed, right? If in air fringe width is beta air, and in liquid if you immerse this whole apparatus into a certain kind of liquid, it may be water, it may be oil, any other kind of liquid also. So beta liquid means in case of liquid, the fringe width will be 1 upon mu times of the fringe width of in case of air, right? So these are the various points that we discussed in our previous lecture. Now the question is, what is fringe width? What is fringe width? So to know the meaning of fringe width, we consider the fringe pattern. In case of Young's double slit experiment, we have already seen in case of Young's double slit experiment, if we see the Young's double slit experiment, you see these are the fringes. This one is dark, bright, dark, bright, dark, bright, dark. This center point of the screen will always be bright, because at center the waves coming from S1 and S2 and reaching at center of a screen will have or will cover equal distances, so there is no path difference between these two waves coming from S1 and S2 and reaching at point O. So here there is no phase difference, and if there is no phase difference, then the path difference will also be 0, and if the path difference is 0, then we have we know it very well that if phase difference is 0, path difference is 0, then constructive interference will take place, and we have maxima at center of screen, means bright fringe, right? So this is the pattern. If we draw this pattern like this, यदि इस पैटर्न को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लें, सपोज दिस इज वन फ्रिंज, दिस वन इज अनदर फ्रिंज, this is another fringe, all fringes will be of same width. I am trying to clear the meaning of fringe width. Here I am drawing the pattern of fringes, or we can say the interference pattern that we obtain in case of Young's double slit experiment. Young's double slit experiment के केस में जो हमें fringe pattern मिलता है उसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, and this is the fringe pattern. Now you see, if I consider that these are the dark fringes, these are the dark fringes, so these are the dark fringes. Consider these fringes as dark fringes. So this is the interference pattern or fringe pattern that we get in case of Young's double slit experiment. So now the question is, what is fringe width? Obviously it is the distance between two fringes, but कौन सी दो fringes के बीच का ये distance fringe width कहलाएगा? We shall discuss it. It is very much obvious that in fringe pattern we are having both dark as well as bright fringes. So इसको थोड़ा सा इस तरीके से शेडिंग कर देते हैं, तो ये हमें मिल गई फ्रिंज पैटर्न. ये क्या मिल गया बेटा? फ्रिंज पैटर्न हमें मिल गया. ये जो फ्रिंज पैटर्न जो हमें स्क्रीन पर मिल रहा था, किस केस में? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में. तो इस फ्रिंज को मैं नाम दे देता हूँ, दिस वन इज डार्क फ्रिंज, और ये मिडिल वन इज ब्राइट, अगेन डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, bright, dark, bright, dark. So B for bright and D for dark, right? Now if you observe this pattern, then you will find that all the fringes are of same width. All the fringes are of same width. Either they are bright fringes or dark fringes. चाहे वो dark fringes हैं
या फिर ब्राइट फ्रिंजेज है। सभी फ्रिंजेज की जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज चौड़ाई है, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस फ्रिंज विड्थ बीटा इज सेम फॉर ऑल फ्रिंजेज वॉट एवर इज द नंबर ऑफ फ्रिंज, वॉट एवर इज द नेचर ऑफ फ्रिंज। नेचर का मतलब चाहे वो डार्क है या ब्राइट है। वॉट एवर इज द नंबर ऑफ फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंज का मतलब चाहे वो पहली फ्रिंज है या लास्ट फ्रिंज है या मिडिल फ्रिंज है, कोई भी नंबर की फ्रिंज हो, कौन वेदर इट इज फर्स्ट फ्रिंज और सेकंड फ्रिंज और 10th फ्रिंज और nth फ्रिंज, whatever is the number of fringe, the fringe width remains same, whatever is the nature of fringe width remains same। सभी फ्रिंजेज की फ्रिंज विड्थ सेम है। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफाइन फ्रिंज विड्थ। सो दिस इज द फ्रिंज विड्थ। मैंने क्या बनाया, ये ब्राइट और ये ब्राइट, दो सक्सेसिव ब्राइट, यानी इस ब्राइट के बाद में तुरंत ये नेक्स्ट वाला ब्राइट। ऐसा नहीं कि ये ब्राइट लिया आपने और फिर इसको छोड़ करके ये तीसरा ब्राइट ले रहे, नो। मैं कह रहा हूं आपको, दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ के बराबर होता है। Similarly, if you define that the distance between two successive dark fringes, ये देखिए, ये डार्क और ये डार्क, सक्सेसिव डार्क हो गई, इस डार्क के बाद तुरंत ये वाला डार्क, तो दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, एक फ्रिंज, एक ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वी मे राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। it may be defined as fringe width may be defined as the distance between two successive bright or dark fringes, distance between two successive bright or dark fringes। दो सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय बीटा, बीटा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि आप लिखते हैं बीटा ब्राइट, मैं यहाँ सब स्क्रिप्ट में ब्राइट लिखता हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, इट इज द डिस्टेंस between two successive dark fringes। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां लिखा है मैंने ब्राइट, बीटा ब्राइट, यानी एक ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ किसके डिस्टेंस के बीच के बराबर होती है, किसके बीच का डिस्टेंस होती है, एक ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेज के बीच के डिस्टेंस के बराबर होती है। तो दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज, एक ये है और एक ये है, इन दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे क्या कहेंगे, बीटा ब्राइट कहेंगे। सिमिलरली दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज के बीच का जो डिस्टेंस है इसे क्या कहेंगे, डार्क कहेंगे, बीटा डार्क। तो बीटा डार्क क्या होगा, बीटा डार्क, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, बीटा डार्क को हम लिखेंगे, it is the distance between two successive bright fringes, तो ब्राइट फ्रिंजेस, दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज की बात होती है तो वो बीटा डार्क के बराबर होता है, और दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज की बात होती है तो वो बीटा ब्राइट के बराबर होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। ये बात आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे हम बात करेंगे, देखिए ये जो मैंने फ्रिंज विड्थ आपको बताई है, दिस इज नथिंग बट द लीनियर फ्रिंज विड्थ। ये क्या है, लीनियर फ्रिंज विड्थ। देखिए जो फ्रिंज विड्थ लीनियर है, लीनियर फ्रिंज विड्थ के लिए जो रिलेशन है वो ये हो गया, लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। डोंट वरी, इसको हम डिराइव करेंगे। यहाँ पर ये लेमडा क्या हो गया, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम सोर्स, एंड कैपिटल डी आप जानते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्लिट्स कहाँ पर बनी हुई है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी,
और स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 एंड S2। ठीक है, तो ये स्मॉल डी है। तो वीटा आप देख रहे हैं लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वीटा आप देख रहे हैं कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वीटा आप देख रहे हैं स्मॉल डी के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यंग्स डबल स्लिट में भी आपको बताया कि यदि आप स्मॉल डी को यानी स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल के बजाय वेरी स्मॉल कर देते हैं तो फ्रिंज विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस केस में फ्रिंज की चौड़ाई जब बढ़ेगी तो एक फ्रिंज दूसरे फ्रिंज के रीजन में एंटर करेगी यानी ओवरलैपिंग हो जाएगी, और उस वजह से फ्रिंज पैटर्न जो है इंटरफेरेंस पैटर्न प्रॉपर और सस्टेंड नहीं रह पाएगा। वैसे ही कैपिटल डी को यदि लार्ज के बजाय वेरी लार्ज कर देते हैं, कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। दोबारा से आपको बता देता हूँ, देखिए ये है आपका कैपिटल डी, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, और ये स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो स्मॉल डी को स्मॉल करोगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, और ये फ्रिंज विड्थ जब बढ़ेगी, फ्रिंज चौड़ाई जब बढ़ेगी तो एक फ्रिंज दूसरे फ्रिंज के रीजन में एंटर कर सकती है, यानी यहाँ पर ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, और उस केस में ये जो फ्रिंज पैटर्न है ये प्रॉपर और सस्टेंड नहीं रह पाएगा। वैसे ही कैपिटल डी को लार्ज के बजाय वेरी लार्ज कर देते हैं तो बीटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बीटा बढ़ जाएगा तो अगेन फ्रिंज चौड़ाई बढ़ने से ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग होने से जो है आपको प्रॉपर और सस्टेंड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ओवरलैपिंग होती है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज कहाँ तक है और डार्क फ्रिंज कहाँ तक है, ये आप नहीं कह पाएंगे। तो क्लियर बाउंड्रीज आपको नहीं दिखाई देंगी ओवरलैपिंग जब होगी तो। और देखिए लेमडा जब वेवलेंथ आप बढ़ाओगे तब भी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाती है, तो लेमडा का भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों पैरामीटर्स जिन पर फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है, केवल और केवल इन तीन पैरामीटर्स पर फ्रिंज विड्थ डिपेंड कर रहा है। फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फ्रिंजेज। बीटा यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट, पहला नोट मैं बता रहा हूँ आपको, बीटा डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फ्रिंजेज, वॉट एवर इज द नंबर ऑफ फ्रिंज। ठीक है, कोई भी नंबर की फ्रिंज हो, नंबर ऑफ फ्रिंज पर बीटा डिपेंड नहीं करता है। बीटा डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फ्रिंजेस। नंबर टू, बीटा ना तो नंबर ऑफ फ्रिंज पर डिपेंड करता है और ना ही बीटा डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्रिंज पर। बीटा डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, ना नेचर पर डिपेंड करता है ना नंबर पर डिपेंड करता है, चाहे वो डार्क है, ब्राइट है, या पहली फ्रिंज है, या 10वीं फ्रिंज है, या लास्ट फ्रिंज है, सभी की फ्रिंज विड्थ क्या होगी? सेम रहेगी। बीटा केवल और केवल इन पर डिपेंड करता है, इन तीन पैरामीटर्स पर ये फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है, डिपेंडेंस ऑफ बीटा। तो ये बीटा जो है केवल और केवल तीन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, लेमडा, कैपिटल डी, स्मॉल डी। लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेकिन ये जो फ्रिंज विड्थ है बेटा, ये फ्रिंज विड्थ लीनियर फ्रिंज विड्थ है, हमने लीनियर निकाली है ना, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है। लेकिन आप देखिए जरा, लेकिन यदि आप इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो एक फ्रिंज यहाँ बन रही है, एक फ्रिंज यहाँ बन रही है, तो यहाँ बनेगी, तो कुछ जैसे जैसे अलग अलग फ्रिंजेस पर आप जाएंगे वैसे वैसे एंगल में चेंज आएगा या नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। तो यहाँ पर एक ये तो अभी मैंने आपको लीनियर फ्रिंज विड्थ के बारे में बताया है। क्या बताया है? लीनियर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ स्क्रीन विल ऑलवेज बी ब्राइट। ठीक है, तो लीनियर फ्रिंज विड्थ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। ठीक है, अब जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी वो क्या होगा, देखिए हम बात कर लेते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ की भी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा ये भी बात कर लें जरा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ की मैं बात करूंगा, कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का डिस्कशन करने के बाद हम फिर बात करेंगे रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ की। बीटा इज इक्वल टू लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कैसे आया? थीटा से इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ को। एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए, आप जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो ये सोर्स होता है, और यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड जो आपने लिया है वो रखते हो आप, और उस पर दो एस से इक्वल डिस्टेंस पर दो स्लिट बना देते हो, S1 S2, और यहाँ पर एक क्या रख देते हैं? स्क्रीन रख देते हैं। दिस इज स्क्रीन।
ठीक है, और ये सोर्स के इस सिद्ध में यहाँ पर ये सेंटर ऑफ स्क्रीन हो गया। तो मान लीजिए एक फ्रिंज यहाँ बनती है, यहाँ से एक लाइट गई और यहाँ से एक लाइट रह गई, ये दोनों लाइट यहाँ गई और यहाँ पर एक फ्रिंज बनी। मान लीजिए ये ब्राइट फ्रिंज बनती है, मान लेते हैं कि ये ब्राइट फ्रिंज है। फिर दूसरी, फिर यहाँ डार्क आ जाएगी, फिर ब्राइट फ्रिंज यहाँ आएगी, तो फिर अगली यहाँ पर लाइट ऐसे जाएगी, दोनों S1 और S2 से जाएगी या नहीं जाएगी। तो देखिए ये जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये एंगल से चेंज आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये देखिए, जब आप ये ब्राइट, ये बीच में डार्क है, ये ब्राइट, ठीक है, ये ब्राइट है, बीच में डार्क है, फिर ये डार्क है, फिर ये ब्राइट है। तो ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ निकालना चाहते हो दो ब्राइट के बीच में, तो ये डिस्टेंस जो हुआ ये तो हो गया बीटा, लीनियर फ्रिंज विड्थ, जो किसके बराबर है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर है। लेकिन यदि आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ यानी थीटा की वैल्यू पूछे, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा। देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की थी। यदि हम लीनियर इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल को मैं अज्यूम कर सकता हूँ, आप कोई भी, जैसे ये ट्राइंगल ले लीजिए, ये ट्राइंगल ले लीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाइए, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाइए, ठीक है। तो ये यहाँ से ये गया, ये कितने एंगल से गया, ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में बीटा हो गया, ठीक है, बीटा हो गया। और ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये कैपिटल डी हो गया। तो परपेंडिकुलर ये हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो ये जो थीटा है जो चेंज होकर के बार ये कभी ये हो जाता है, कभी और भी वैल्यू हो जाएंगी, अलग अलग थीटाज होंगे, ठीक है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, इस तरीके से एंगल चेंज होते रहेंगे। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो क्या होगी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की यदि आप बात करोगे थीटा, ये क्या होगा, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकता हूँ। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यदि मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, इस ट्राइंगल में इसको m मान लेता हूँ, इसको ये S2 है और ये मान लीजिए n है, तो M S2 n में टेन थीटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। M S2 n में थीटा क्या होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर मतलब mn, परपेंडिकुलर mn, और बेस क्या होगा NS2। तो जो परपेंडिकुलर है वो तो बीटा, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है इस डायरेक्शन में, बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, बीटा अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा। अब यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया आपका किसके लिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ के लिए, बीटा अपॉन कैपिटल डी, जिसको अब आप जानते हो बीटा की वैल्यू अभी लीनियर फ्रिंज विड्थ के केस में इस तरीके से निकाली है हमने। अब जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है क्या कैपिटल डी पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, ये देख लेते हैं। तो यदि बीटा की वैल्यू आप यहाँ रखोगे लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और नीचे कैपिटल डी है, तो देखना जरा, कैपिटल डी से तो कैपिटल डी कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ आया। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो स्लिट के बीच का डिस्टेंस और वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, यानी इन स्लिट्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये कितना है इस पर डिपेंड करेगा, और सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। कैपिटल डी पर जो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये रिलेशन आया, बट दिस इज नॉट द फाइनल रिलेशन, हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू रखी, तो ये फाइनल रिलेशन है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की यदि हम बात करें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स ऑन लेमडा एंड स्मॉल डी। अब स्मॉल डी आप जानते ही हो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है, लेमडा सोर्स S से निकलने वाली लाइट का वेवलेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। यदि जैसे आपने एयर के अब आप मान लीजिए नोट करके यहाँ लिख दें, इफ YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज्ड, पूरा की पूरा एपरेटस यदि इमर्ज कर दिया है, इमर्ज्ड इनटू ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो कितनी हो जाएगी,
तो उस केस में जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, देखिए लीनियर फ्रिंज विड्थ की आप जानते हो, लीनियर फ्रिंज विड्थ बीटा लिक्विड के अंदर क्या होती है, बीटा एयर अपॉन म्यू हो जाती है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी, अब यहाँ से निकाल लें हम, भाई बीटा एयर की जगह क्या लिख सकते हो आप, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है और ये लिक्विड के अंदर फ्रिंज विड्थ है। तो लिक्विड के अंदर यदि आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, लिक्विड के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, तो लिक्विड के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा लिक्विड अपॉन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बीटा लिक्विड अपॉन बीटा अपॉन कैपिटल डी होगा, बीटा लिक्विड अपॉन कैपिटल डी होगा, बीटा लिक्विड अपॉन कैपिटल डी होगा। जैसे यहाँ से यदि मैं निकालना चाहूँ, यदि एयर के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ आप निकालते हो तो क्या होता है, बीटा एयर अपॉन कैपिटल डी। तो बीटा एयर को आपने क्या लिखा, लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये क्या आ गया, थीटा एयर लेमडा अपॉन स्मॉल डी के बराबर आ गया, थीटा एयर की वैल्यू आ गई। एयर के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ इतना हुआ। अब यदि लिक्विड के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं तो बीटा लिक्विड हो जाएगा अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा। अब बीटा लिक्विड को आप क्या लिखते हो, बीटा लिक्विड को आप लिखते हो बीटा एयर अपॉन म्यू लिखते हो यानी, और अपॉन कैपिटल डी। बीटा लिक्विड की जगह आप बीटा एयर अपॉन म्यू लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो बीटा एयर क्या होता है, लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, म्यू पहले से है, स्मॉल डी ये हो गया अपॉन ये कैपिटल डी। अब देखिए कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल होने वाला हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आया, लेमडा अपॉन स्मॉल डी, लेमडा अपॉन स्मॉल डी अपॉन म्यू, ये आ गया। अब ये लेमडा अपॉन स्मॉल डी जो है क्या है, ये एयर के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। तो यहाँ से जो थीटा लिक्विड आएगा, यदि इसको मैं इस तरीके से इधर लिखता हूँ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन लिक्विड, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन लिक्विड, तो लेमडा अपॉन के स्मॉल डी क्या है, एयर के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, एयर के अंदर एंगुलर फ्रिंज विड्थ है अपॉन म्यू। यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, जैसे एयर में चेंज हो रहा था वैसे यहाँ पर भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ की भी बात मैंने आपसे की है यहाँ पर। तो आप दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि आपसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है या फिर आपसे लीनियर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये तो फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बताया है कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है, किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या होता है और एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं रिलेशन डिराइव करना चाहूँगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिराइव ए रिलेशन, डिराइव ए रिलेशन, डिराइव ए रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के लिए रिलेशन पूछता है वो एग्जाम में कई बार। तो बीटा के लिए रिलेशन हमें निकालना है, जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये कैसे आया फॉर्मूला, ये डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट। किसे कंसीडर कर लेते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट एज सॉन बिलो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एक सोर्स होता है और सोर्स के आगे आप जानते हो एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड होता है। रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर आप दो स्लिट्स बना देते हो, इस तरीके से बनाते हो कि एस से उन दोनों स्लेट S1 और S2 की जो डिस्टेंस है वो सेम हो, और उसके आगे यहाँ पर रख देते हो एक स्क्रीन। क्या रख देते हैं, स्क्रीन, और ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट हो जाता है, इसे कह दिया आपने स्क्रीन। और ये स्लेट्स हैं, स्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आप जानते हो स्मॉल डी होता है, और स्लेट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी आप जानते हो कैपिटल डी होता है। स्लेट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, कैपिटल डी होता है। ठीक है, अब आपको प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करना है, तो आप ये तो जानते ही हो कि लेमडा अपॉन ए, लेमडा इससे निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और ए इसका साइज हो गया, डायमीटर। लेमडा अपॉन ए जो है ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किससे, जो भी वाई होगा, जो डी है, डी अपॉन वाई, डी अपॉन वाई, वाई मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि तभी S1 S2 जो है कोहेरेंस होंगे, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चलिए,
अब इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फ्रिंज बनती है। सपोज ए फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट दिस, राइट। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ओ डैश। इस ओ डैश पर एक फ्रिंज बनती है, ओ डैश पर एक फ्रिंज बनती है, और ओ से ओ डैश का जो डिस्टेंस है इसको भी मैं कंसीडर कर लेता हूं। मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पर ये फ्रिंज बनती है ओ से ओ डैश पर, और ये फ्रिंज मान लेते हैं ब्राइट है या डार्क है, जो भी है हम मान लेंगे। और ये फ्रिंज बन रही है तो कैसे बनेगी बेटा? भाई डेफिनेटली S2 से यहाँ पर लाइट पहुंच रही होगी, S2 से यहाँ पर लाइट पहुंचेगी, कहाँ पर? ओ डैश पर, ठीक है। और S1 से भी लाइट पहुंचेगी, S1 से भी लाइट पहुंचेगी, ये S1 से लाइट पहुंच रही है। S1 और S2 से यहाँ ओ डैश पर लाइट पहुंचेगी, तो इन दोनों वेव्स के मिलने से ओ डैश पर क्या वो होगा? फ्रिंज फॉर्मेशन होगा। और हम ये देखना चाहते हैं कि ओ डैश पर कैसी फ्रिंज बनेगी, वेदर इट विल बी डार्क और ब्राइट, कुछ भी हो सकता है, ब्राइट भी बन सकती है, डार्क भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी उस फ्रिंज का ये डिस्टेंस x हम पहले कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में फ्रिंज विड्थ हमें मिल पाएगा। तो अब यहाँ पर मैं दूसरा काम क्या करता हूँ कि ये सेंटर पॉइंट है, स्क्रीन से सेंटर पॉइंट है, तो ये वाला एक डिस्टेंस ये कैपिटल डी हो गया, और इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। ये अलग अलग डॉटेड लाइन सेम मत समझ लेना सबको। ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एम, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ एन। अब देखिए ये O से M का जो डिस्टेंस होगा, O से M का डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि M से N का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल d होगा, क्योंकि ये स्मॉल d है तो M से N भी स्मॉल d होगा, तो ये dy2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? dy2 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? dy2 हो जाएगा, dy2 हो जाएगा। तो अब ये O से O डैश का डिस्टेंस कितना होगा? सॉरी, हाँ, O से O डैश का डिस्टेंस तो हमने x लिया है। O डैश से M का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? यदि हम देखें, आपको दिखाई देगा, अभी रुकिए। हाँ, ये देखिए, अब यदि मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, केवल इस डिस्टेंस की, क्योंकि मैं यहाँ पर जो फ्रिंज बन रही है उसकी बात करूंगा पहले, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? देखिए O डैश M चाहिए मुझे, तो O से O डैश x है, और इसमें से dy2 माइनस कर देता हूँ, तो ये x माइनस dy2 हो जाएगा या नहीं भाई? O डैश M कितना हो जाएगा? x माइनस dy2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिमिलरली O डैश n की यदि मैं बात करूं, यहाँ अलग से लिख देता हूँ, O डैश m कितना हो गया? x माइनस dy2 हो गया। और O डैश n क्या होगा? O डैश n, देखिए O से O डैश तो x है और ये dy2 है, तो x प्लस dy2 हो जाएगा O डैश n, x प्लस dy2 हो गया O डैश n। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिंज बन रही है, और ये हमें पता नहीं है कि ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है, हम दोनों केसेस ले लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर जब हमें फ्रिंज विड्थ पता करना है, तो सबसे पहले S1 और S2 से इस पॉइंट O डैश पर जो वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच कितना पाथ डिफरेंस है, ये हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस between waves emerging from S1 and S2 and reaching at point O dash। S1 S2 से निकलने वाली और O dash पर जो पहुंचने वाली ये दो वेव्स हैं, S1 O dash और S2 O dash। एक वेव हो गई बेटा ये, इसको मैं डार्क से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो गई एक वेव S2 O डैश, और एक ये हो गई आपकी S1 O डैश, ये S1 O डैश हो गई। ये दो वेव्स यहाँ पर पहुंच रही हैं, तो जो पाथ डिफरेंस होगा भाई, S2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया O डैश तक, और S1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया O डैश तक, दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और ज़्यादा डिस्टेंस आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, S2 ने कवर किया है O डैश तक पहुंचने में, और S1 ने O डैश तक पहुंचने में इस डिस्टेंस की तुलना में कम डिस्टेंस कवर किया है।
तो S2O' माइनस S1O' आपको क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। और पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, S2O' माइनस S1O'। ठीक है, S2O' माइनस S1O'। अब क्वेश्चन है कि ये S2O' क्या होगा। अब S2O' निकालने के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे O'(S2N). S2O' चाहिए मुझे, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो कौन से ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, O'(S2N), O'(S2N), O'(S2N). इस ट्राइंगल में यूजिंग ट्राइंगल O'(S2N), तो S2O' ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर यानी S2N बेस हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया N O' होल स्क्वायर। देखिए S2N ये हो गया बेस, इसका होल स्क्वायर प्लस N O' ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों का सम इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से S2O' आ जाएगा आपका कितना, S2N क्या है, व्हाट इज S2N, S2N कैपिटल D है, तो S2N स्क्वायर है तो कैपिटल D स्क्वायर प्लस N O' ये रहा मेरा N O' हमने ऑलरेडी निकाल लिया, O'(N) कहो या N O' कहो, x प्लस dy2, तो यहाँ x प्लस dy2 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होल रेज टू दी पावर हाफ हो जाएगा क्योंकि S2O' की हमने बात की है। तो इसको मैं एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए यूजिंग ट्राइंगल O'(S1M), यूजिंग ट्राइंगल O'(S1M), जैसे हमने O'(S2N) का यूज किया वैसे ही O'(S1M), 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 इस ट्राइंगल का यूज करके हम S1O' निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, S1M स्क्वायर प्लस MO' स्क्वायर, यही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो S1O' होल स्क्वायर बराबर होगा S1M होल स्क्वायर प्लस MO' होल स्क्वायर। अब S1O' चाहिए हमें, S1O' चाहिए तो ये लेंगे, और S1M अगेन कैपिटल D है, S1M क्या है, कैपिटल D है, देखिए S1M कैपिटल D है, और MO' क्या है, x माइनस dy2 है MO', तो x माइनस dy2 होल स्क्वायर और होल रेज टू दी पावर हाफ, ये आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मैं मान लेता हूँ 3। यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 1 may be rewritten as, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 2 और 3 की हेल्प से, 2 और 3 से S2O' और S1O' की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखें, S2O' की रखें तो कैपिटल D स्क्वायर प्लस x प्लस स्मॉल dy2 होल स्क्वायर होल रेज टू दी पावर हाफ, और माइनस S1O' मतलब कैपिटल D स्क्वायर प्लस x माइनस dy2 होल स्क्वायर होल रेज टू दी पावर हाफ। S2O' और S1O' की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं कैपिटल D स्क्वायर को बाहर लेता हूँ, तो रूट है तो कि D बाहर आएगा, D स्क्वायर को बाहर लेने पर क्या आएगा, D बाहर लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ रूट है, ये रूट के अंदर है, और ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा x प्लस dy2 होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर जिसको आपने कॉमन लिया होल रेज टू दी पावर 1/2, माइनस यहाँ से भी कैपिटल D स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो D बाहर आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा x माइनस dy2 होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर और होल रेज टू दी पावर आ गया हाफ। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर n ऐसा एक्सपेंशन बन जाएगा और इसको फिर हम एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा आगे करते हैं।
अब तो सिंपली मैथमेटिक्स बचा हुआ है। देखिए जो डिस्टेंस है x प्लस डी वाई टू, दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। तो x प्लस डी वाई टू अपॉन कैपिटल D वुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है। और सिमिलरली यदि आप देखें डायग्राम में, अभी मैं आपको बताऊंगा, x माइनस डी वाई टू इट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। तो यहाँ से x माइनस डी वाई टू अपॉन कैपिटल D वुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, ये लिखा जाएगा। और आप जानते हैं 1 प्लस एक्स होल की पावर n, इसमें यदि n x की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से, बाइनोमियल थ्योरम इसे कहते हैं। हायर पावर्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया है इसलिए अप्रॉक्सीमेट लिख दिया है। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही कंडीशन, ये x की वैल्यू लेस देन 1 है या नहीं, देखिए जरा। देखिए x प्लस डी वाई टू, वेयर इज x प्लस डी वाई टू, दिस डिस्टेंस ओ डैश एन, ओ डैश एन, ये x प्लस डी वाई टू है। क्या इसकी वैल्यू इस कैपिटल D की तुलना में काफ़ी कम नहीं है? ये कैपिटल D तो लार्ज है और ये डिस्टेंस तो उतनी है नहीं। सिमिलरली x माइनस डी वाई टू भी इस डिस्टेंस कैपिटल D की तुलना में काफ़ी कम होगा। और जब कम होगा तो देखिए ये हमने निकाला कि x प्लस डी वाई टू अपॉन कैपिटल D लेस देन 1 है। जब ये लेस देन 1 आ रहा है तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया जा सकता है, यानी ये जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही इसमें भी x माइनस डी वाई टू अपॉन कैपिटल D लेस देन 1 आ रहा है तो ये पावर भी यहाँ पर आ जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसलिए हमने देयरफॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना आ जाएगा, कैपिटल D अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे, अब एक्सपेंशन कर रहे हैं, 1 प्लस पावर आ जाएगा 1 अपॉन टू एक्स प्लस डी वाई टू होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर माइनस कैपिटल D 1 प्लस एक्स माइनस डी वाई टू होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर, और पावर भी यहाँ आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन यानी पावर को हमने रिमूव कर दिया। अब वापस आप क्या करें, इसमें d को अंदर ले जाएं, तो d प्लस डी को अंदर ले जाएंगे, एक d कैंसिल होगा, 1/2d एक्स प्लस डी वाई टू होल स्क्वायर माइनस, इसमें भी ब्रैकेट को ओपन करें, d को अंदर ले जाएं, माइनस 1/2 कैपिटल D एक्स माइनस डी वाई टू होल स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, काफ़ी आसान हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2D कॉमन आ रहा है दोनों में, और अंदर x प्लस डी वाई टू होल स्क्वेयर माइनस और x माइनस डी वाई टू होल स्क्वेयर, ये लिखा जाएगा। अब जो अंदर है उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स डी, ये आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आप सब ओपन करना इसको जानते हैं, और ये एक्स डी आएगा। ठीक है, 2xd, तो डी बाई टू है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, xd आएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2xd अंदर बचा, तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्मॉल d अपॉन 2 इंटू कैपिटल D। अगेन 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो पाथ डिफरेंस का जो फाइनल रिलेशन आया x इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ये पाथ डिफरेंस आ गया। यानी S1 से, देखिए S1 से O डैश पर पहुंचने वाली वेव और S2 से O डैश पर पहुंचने वाली वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला वो क्या आया, स्मॉल x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, पाथ डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो पॉइंट O डैश है जहां पर S1 और S2 से वेव पहुंच रही है, इस पॉइंट पर हमें पता नहीं है कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है या डार्क, तो हम क्या करें, दोनों केस कंसीडर करेंगे। तो केस 1 लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए, 3 चल रहा है हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इक्वेशन 3 का। अब केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं कि ओ डैश पर यदि ब्राइट फ्रिंज बने,
यानी फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। ब्राइट फ्रिंज जिसको आप मैक्सिमा भी कह सकते हो, यानी आप क्या कह सकते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तभी तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। कहाँ पर, ओडेस पर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। ये कंडीशन होगी पहली, ब्राइट फ्रिंज का हो या मैक्सिमा का हो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हो। तो जब ब्राइट फ्रिंज बनती है तो पाथ डिफरेंस हम जानते हैं कितना होता है, n इंटू लेमडा। याद कीजिए मैंने आपको बताया था जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केसेस डिस्कस किए थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैंने आपको बताया था, ध्यान आ रहा हो आपको, ध्यान आ रहा हो, देखिए ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी कंस्ट्रक्टिव और मैक्सिमा के लिए। पाथ डिफरेंस की यदि मैं बात करूं तो n लैम्डा आ रहा था, तो इसका सीधा यूज हम कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, n लैम्डा। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं consider that at point o dash nth bright fringe is formed। कौन सी फ्रिंज बन रही है, nth ब्राइट फ्रिंज। तो उस केस में इक्वेशन 3 एंड 4 विल गिव, इक्वेशन 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा, x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बराबर हो जाएगा n लेमडा के, और यहाँ x की जगह xn आ जाएगा। nth ब्राइट फ्रिंज हम मान करके चल रहे हैं कि जो आपका स्क्रीन है जहाँ पर पॉइंट o डैश है, ये पॉइंट o डैश पर हम मान के चल रहे हैं कि कौन सी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज, और कौन से नंबर की, nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ठीक है। तो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए x की जगह मैंने क्या लिख दिया, xn लिख दिया। भाई दोनों इक्वेशन बराबर होंगी, 3 और 4 दोनों ही पार्ट डिफरेंस है, तो x d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, और तो x की जगह मैंने लिखा xn। तो यहाँ से मैं अब आसानी से xn यानी nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, और वो इतना आ जाएगा। ये nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मुझे मिल गया। nth ब्राइट फ्रिंज जो सेंटर ऑफ स्क्रीन से xn डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये यहाँ से सेंटर ऑफ स्क्रीन से इस nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस xn मुझे मिल गया। अब इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए, तो या तो मुझे इससे nth ब्राइट फ्रिंज से पहले वाली ब्राइट फ्रिंज पता हो n-1, या फिर इससे आगे वाली फ्रिंज n+1 पता हो। क्योंकि फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हम कहते हैं कि इट इज फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज। तो यहाँ तो इससे पहले वाली फ्रिंज पता हो या इससे बाद वाली, ये nth है तो n-1 पता हो या फिर n+1 पता हो। तो n+1 की यदि हम बात कर लेते हैं, फॉर n+1th ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस क्या होगा, यदि nth फ्रिंज के लिए डिस्टेंस ये आ रहा है तो n+1th ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस आएगा, n की जगह n+1 रख दो, सिंपल सी बात है, n की जगह क्या रख दें, n+1 रख दें, बाकी एज इट इज हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। और यदि मैं कहता हूँ कि xn+1 माइनस xn ये किसके बराबर होगा, अब आप समझ गए होंगे, ये बराबर होगा बीटा डार्क के। अब आप कहेंगे बीटा डार्क क्यों, क्योंकि xn+1 n+1th ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है और xn nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू द फ्रिंज विड्थ ऑफ वन डार्क फ्रिंज। याद आ गया। तो यहाँ से आप निकालिए बीटा डार्क, बीटा डार्क निकालें तो xn+1 की वैल्यू रखिए, कितनी है, n+1 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, और माइनस xn, xn की वैल्यू ये रही है आपके पास, n लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बीटा ब्राइट हमें मिल जाएगा, बीटा डार्क हमें मिल जाएगा। देयरफॉर बीटा डार्क क्या आ जाएगा, n+1 ब्रैकेट को ओपन करें, n लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी प्लस लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी माइनस क्या है, n लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो बीटा डार्क क्या आ गया,
बीटा डार्क बराबर आ गया लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फाइनल रिलेशन आया। एक डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकाल ली, या फिर हम कहें कि हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस का बीच का डिस्टेंस बीटा डार्क होता है, ये आप जानते हो। इसमें कहीं भी नंबर ऑफ फ्रिंज स्मॉल एन नहीं आ रहा है, तो ये नंबर ऑफ फ्रिंज पर डिपेंड नहीं करता है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 लेते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट ओ डैश पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, डार्क फ्रिंज बन रही है, फॉर डार्क फ्रिंज। ठीक है, फ्रिंज को स्ट्रिप भी कह सकता है, वो एग्जाम में स्ट्रिप भी लिखा हुआ आ सकता है फ्रिंज की जगह, ध्यान रखिएगा। फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क को हम क्या कहते हैं, मिनिमा, या फिर आप क्या कहते हैं, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी क्रैश ट्रॉ से और ट्रॉ क्रैश से मिलता है तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको मिनिमा मिलता है, डार्क मिलता है। और डार्क के केस में पाथ डिफरेंस आप जानते हो, पाथ डिफरेंस कितना होता है डार्क के केस में, याद करो। पाथ डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। ये डार्क फ्रिंज का, डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। आपको हायर बुक्स में यहाँ माइनस भी मिलेगा, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, राइट साइड के लिए और लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, तो हम प्लस लेके चल रहे हैं, डोंट वरी। 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2, माइनस भी यहाँ हो सकता है, उसकी चिंता आप ना कीजिए। तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 होता है। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 8 मान लेता हूँ। यूजिंग इक्वेशन कौन सा था पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन, पार्ट डिफरेंस का जो इक्वेशन हमने लिखा था, ये पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन था 3xd अपॉन कैपिटल डी। सो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 8 वी में राइट, क्या लिखा जा सकता है, वी में राइट x इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2। अब मान लेते हैं कि जो पॉइंट ओ डैश है, ठीक है, कंसीडर दैट एट पॉइंट ओ डैश, जैसे हमने ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन माना था वैसे ही हम मान लेते हैं कंसीडर एट पॉइंट ओ डैश एनथ डार्क फ्रिंज इज फॉर्म। एनथ डार्क फ्रिंज बन रही है यहाँ पर, मान लीजिए। तो x का वैल्यू मैं x एंड डैश ले लेता हूँ, पहले x एन लिया था ब्राइट के लिए तो डैश लगा दिए, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह x एंड डैश लिखें, d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन 2, ये लिखा जा सकता है। और यहाँ से x एंड डैश बराबर आ जाएगा 2n+1 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d, ये आया। इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लेता हूँ। ये यहाँ पर जब हमने माना है कि डार्क फ्रिंज बन रही है, एनथ डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस आ गई सेंटर से। अब वही डार्क फ्रिंज के लिए आपको चौड़ाई चाहिए, फ्रिंज विड्थ चाहिए, तो आपको एनथ डार्क फ्रिंज से आगे वाली डार्क फ्रिंज या उससे पहले वाली फ्रिंज, पहले वाली कौन सी होगी, n-1th होगी, और आगे वाली कौन सी होगी, n+1th डार्क फ्रिंज होगी। तो फॉर n+1th डार्क फ्रिंज, क्योंकि तभी तो आपको सक्सेसिव डिस्टेंस मिलेगी, तो n+1th डार्क फ्रिंज के लिए जो डिस्टेंस होगी xn+1 डैश होगी, n की जगह n+1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2n, n की जगह n+1 रख दें, 2n+1 और +1 है ही, इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन 2d, ये क्या आ गया 2n+3 हो जाएगा भाई, 2n+2 और +1 2n+3 लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन 2d। ये n+1th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस आ गया सेंटर ऑफ स्क्रीन से। अब यदि आप n+1th डार्क फ्रिंज में से nth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा बीटा ब्राइट, क्या आ जाएगा, बीटा ब्राइट। तो बीटा ब्राइट निकाल लीजिए, xn+1 डैश रखें 2n+3 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन 2d माइनस 2n+1 लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन 2d। इसको सॉल्व करें
तो 2n lambda d अपॉन 2d प्लस 3 lambda इंटू कैपिटल D अपॉन 2d। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। ये किया माइनस lambda इंटू कैपिटल D अपॉन 2d। अब देखिए ज़रा, ये कैंसिल हो गया और जो बचा है ये lambda इंटू कैपिटल D अपॉन 2d कॉमन आ रहा है, तो 3 माइनस 1 2, यानी ये बच जाएगा, ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली बीटा ब्राइट बराबर आ गया, देखिए lambda इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ भी देखिए कहीं भी स्मॉल n नहीं आ रहा है, तो जितना डार्क फ्रिंज के लिए चौड़ाई आया उतना ही ब्राइट फ्रिंज का चौड़ाई आ रहा है, यानी नेचर पर डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल लैम्डा, कैपिटल D और स्मॉल d पर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से हम फ्रिंज विड्थ का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रिलेशन भी कैसे डिराइव करना है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ की बात हो गई। रिलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ के बाद में अब हम कंडीशंस ऑफ प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे, और ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।